Hello students, today we are going to discuss this chapter, The 100 Dresses Part 1. Okay, and the author is L. Sor Esther. Yes student, here is the author. इसको ऐसे नहीं बोलना है एल बसो, it's L. Sor Esther. Now, before you read, we have some important points here. See, how do we judge the people around us? Point number 1, by their money, wealth and possessions, or is there something of more enduring value? Means हम लोगों को कैसे जज करते हैं कि इंसान कैसा है? जिसके पास बहुत पैसा है वो हमेशा अच्छा हो, ऐसा नहीं होता. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Venda Petronsky is the main character of this story. Is a young Polish girl who goes to school with other American students in an American town, and these children see Venda as different. Different मतलब उसको सब बहुत अलग समझते हैं. Can you guess how they treat her? Now read the information in the box below. कुछ इन्फॉर्मेशन दी है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में जो यूनाइटेड स्टेट्स में है. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles किसको कहते हैं? Polish लोगों को, यानी जो पोलैंड के रहने वाले होते हैं. Poles होते हैं inhabitants of Poland, okay, पोलैंड के रहने वाले. The Polish state did not exist at that time. तो कोई Polish state नहीं थी, पोलैंड था. And the immigrants were identified according to their country of origin, other than ethnicity. Ethnicity means वो रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि जिस जगह वो रह रहे थे पॉलिश लोग जाकर वहाँ के वो बन जाते थे, like German Poles, Austrian Poles. One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. Suburbs means उसके आसपास, Chicago और उसके आसपास के इलाके. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw. Warsaw जो कि कैपिटल है पोलैंड का, ठीक है. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. Yes students, Americans इन सब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वो पॉलिश लोगों के साथ भी वही डिस्क्रिमिनेशन करते थे. According to the United States 2000 census, 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US पॉपुलेशन. यस, वो किस तरह की पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे उसके बेस पर ही उनको डिस्क्रिमिनेट, उसके ऊपर ही उनको कैटेगराइज कर दिया गया. नाउ लेट अस कम टू दिस स्टोरी. यस, टुडे मंडे, Venda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Venda is the main character of the story. वो आज स्कूल नहीं आई है मंडे को, but nobody is there. किसी को बॉदरिंग नहीं है कि वो बच्चा क्यों एब्सेंट है, ना ही पैगी और मेडलिन. जो पैगी और मेडलिन है बेटा, ये भी इसके 2 कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इन दिस स्टोरी. द गर्ल्स हु स्टार्टेड, वो उन्होंने ही वेंडा के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया था. यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो वेंडा कहाँ बैठती थी? जहाँ सबसे ज़्यादा रफ़ बॉयज़, मतलब जो अच्छा स्कोर नहीं करते थे, सबसे ज़्यादा नॉइस बनाते थे, मतलब उस तरह के बच्चे बैठते थे, बॉयज़ बैठते थे, उन्हीं के बीच वेंडा बैठती थी. बट इसलिए नहीं क्योंकि वो भी रफ़ थी, बट इसलिए क्योंकि वो पॉलिश गर्ल थी. Venda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. And nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. Now see students, nobody knew exactly why Venda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bojens Heights. वो कहाँ रहती थी? बॉजन्स हाइट्स में. और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर कि अक्सर गरीब लोग रहा करते थे. एंड देयर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके फीट में हमेशा मड लगा रहता था. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, किसी को उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था.
The time when they thought about Venda was outside of school hours at noon time, when they were coming back to school or in the morning early. तो किस किस टाइम पे वो वेंडा के बारे में सोचा करते थे? मॉर्निंग में, ओके, नून टाइम में, एंड इन द स्कूल आवर्स, आफ्टर द स्कूल आवर्स. ठीक है, ये 3 जगह होती थी जब वो वेंडा के बारे में सोचते थे, क्योंकि उस समय वो क्या करते थे? व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. ठीक है, जब वो ग्रुप्स बना के वहाँ चलते थे और लाफ करते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, और फिर कभी कभी रुक कर वेंडा का वेट करते थे. टू हैव फन विद हर. यस स्टूडेंट्स, टू हैव फन विद हर मीन्स टू मेक फन ऑफ हर. फन ऑफ हर, ओके, उसके साथ नहीं फन करना है बल्कि उसका मजाक बनाना है. ठीक है. द नेक्स्ट डे वॉज ट्यूजडे एंड वेंडा वॉज नॉट इन द स्कूल ईदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. बट ऑन वेडनेसडे, कब नोटिस हुआ उसका एब्सेंट? पैगी और मैडी ने कब नोट किया? ऑन वेडनेसडे. हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक in a whole lot of mud did notice that Venda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Venda's absence was because Venda had made them late to school. आज उन्होंने क्यों उसका एब्सेंस वेडनेसडे को मार्क किया? क्योंकि वेंडा की वजह से वो लेट हो गए. एक्चुअली वो वेट कर रहे थे वेंडा की मॉर्निंग में कि वो आएगी, हम उसका मजाक उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, लेकिन वो आई नहीं तो वो लेट हो, और वो वेट करती रही, और they had waited and waited for Venda to have fun with her and she just hadn't come. They often waited for Venda Petronsky to have fun with her. अब देखो fun with her नहीं है, fun of her है. Some questions of this oral here. Where is the classroom does Venda sit in? Why? So Venda used to sit in the last row, last bench. Okay, why? Because she came from Bojans Heights and her shoes were mostly smeared with mud. Then where does Venda live? Venda live in Bojans Heights, and what kind of place do you think it is? It is a place where underprivileged people lived. Okay. When and why do Peggy and Maddie noticed Venda's absence? They noticed her absence on Wednesday when they waited for her to make fun of her, but she did not come. Okay. Question 4 is, what do you think to have fun with her? Yes, to have fun with her means to make fun of her. This is very easy. Then Venda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. क्योंकि वेंडा पेट्रॉन्स्की का जैसा नाम था वैसा अक्सर किसी का नहीं होता था. They had names easy to say like Thomas, Smith और Alan. There was one boy named Bounce, Billy Bounce, और वो उसका नाम भी फ़नी सोचते थे कि बिली बाउंस भी फ़नी है, तो वेंडा पेट्रॉन्स्की तो बिल्कुल ही फ़नी नेम है. Now see, Venda did not have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that did not hang right. It was clean. Yes, Venda एक ही ड्रेस हमेशा पहनती थी जो faded थी but हमेशा clean होती थी. But it looked as though it had never been ironed properly. She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch. एक गेम होती है वो जो उसको खड़े होकर वहाँ देखती थी because she has no friends. हाँ, आती जाती गर्ल्स उससे बात कर लेती थी. ठीक है, ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड. वेंडा, पैगी, अब देखो पैगी बोल रही है उससे, वुड से इन मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन. मिस मेसन उनकी टीचर का नाम है. वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. नज का मतलब होता है अ जेंटल पुश, धीरे से कोनी मारना. हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट? क्लोजेट क्या होता है? अलमीरा. अलमीरा. कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारी अलमीरा में तुम्हारे पास? देखो, दिस इज़ पैगी और ये मैडी और उसकी फ्रेंड्स हैं, एंड दिस इज़ वेंडा. एंड सी हाउ वेंडा इज स्टैंडिंग. शी इज़ वेरी सैड, अलोन. 100. Venda used to say 100. 100? exclaimed all the girls incredulously. Incredulously means showing unwillingness to believe, जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके. And little ones would stop playing hopscotch, और छोटी गर्ल्स भी सुनती थी खड़ी होकर. अच्छा, 100 ड्रेसेस है तुम्हारे पास? Yeah, 100. All lined up, said Venda. Then her thin lips drew together in silence.
What are they like? All silk, I bet, said Peggy. कहते अच्छा फिर तो सारी सिल्क की ड्रेसेस होंगी. या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स. कहती सिल्क की हैं और सभी रंगों की हैं. वेलवेट टू. कहती अच्छा वेलवेट की भी है. या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस. वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. कहते हैं हाँ सब मेरी क्लोजेट में रखी हुई हैं. Then they had better let her go, and then before she would gone very far, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter. उसको जाने देती थी और जब वो थोड़ी दूर जाती थी पीछे से जोर से हंसती थी. 100 dresses. Obviously, the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. So why she says she had 100 dress? What a story! How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Shoes पूछते थे तो कहती थी 60 pairs हैं. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. कहते वाह. Exaggerated means होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना. कहते वाह झूठ बोलती है ये लड़की. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Now see, Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend. Inseparable means जो कभी अलग नहीं होता. Were always the last to leave. Finally, Venda would move up the streets, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then. In funny way she had, finishing the walk to school alone. अकेली चली जाती थी अपने घर. Peggy was not really cruel. Yes, Peggy असल में cruel नहीं थी. She protected small children from bullies. Bullies कौन होते हैं? वो बच्चे, बड़े बच्चे जो छोटे बच्चों को डराते हैं. And she cried for hours if she saw an animal mistreated. अगर कोई एनिमल मिसट्रीट करता है, किसी एनिमल के साथ कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, मिसट्रीट होता है बुरा व्यवहार करना, तो वो रोती थी. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, अगर कोई उससे पूछता कि तुम वेंडा के साथ क्रूअल क्यों हो, शी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड. कहती क्रूअल? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. अब उसकी क्या चिढ़ थी, वो क्यों चिढ़ती थी वेंडा से? क्योंकि वेंडा बोलती थी कि 100 ड्रेसेस है. अगर 100 ड्रेसेस हैं तो वो क्यों एक ही ड्रेस पहन कर आती है? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person else. Why did she have a name like that? कहते ordinary person तो अपने आप को समझती नहीं है, देखा उसका नाम कैसा है. Anyway, they never made her cry. फिर भी कभी उन्होंने वेंडा को रुलाया नहीं, इतना नहीं सताया कि वो रो पड़े. As for Maddie, the business of asking Venda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Yes, मैडी जो है वो परेशान हो रही थी इन सब चीज़ों से. मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ. क्यों परेशान हो रही थी? बिकॉज मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ. शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स. हैंड मी डाउन क्लोथ्स होते हैं किसी दूसरे के पहने हुए कपड़े, पुराने कपड़े जो थोड़ी अच्छी कंडीशन में होते हैं. थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप इन बॉजन्स हाइट्स. कहती है कि अच्छा है कि मैं बॉजन्स हाइट्स में नहीं रहती. और हैव अ फ़नी नेम. कहती मेरा फ़नी नेम भी नहीं है वेंडा के जैसे. ओके स्टूडेंट्स, समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस. मॉकिंग पोलाइट वॉइस मीन्स फन बनाते हुए. मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड. मैडी को बहुत बुरा लगता था और वो क्या करती थी? एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग. वो कुछ नहीं कहती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली. यस, और वेंडा के साथ उसका कुछ खास वो भी नहीं था. उसे बुरा क्यों लगता था? क्योंकि वो भी गरीब है. ठीक है, बस उसको ये लगता था कि कहीं मेरे साथ ये ऐसा ना हो. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. अगर कभी पैगी ने ये गेम ना बनाई होती तो शायद वो वेंडा की तरफ कभी ध्यान ही ना देती. बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. कहते लेकिन ऐसा ना हो कभी वेंडा को छोड़कर वो इसको मैडी के साथ मजाक करना शुरू कर दी. शी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर. वो इतनी पुअर तो नहीं थी जितनी वेंडा है, लेकिन पुअर तो थी. ऑफकोर्स इट वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. हाँ, वो ये भी नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. फिर भी वो नहीं चाहती थी कि वो उसका मजाक उड़ाएं. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रॉन्स्की. वो यही विश कर रही थी कि वेंडा को वो परेशान करना छोड़ दे. नाउ सी स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सम ओरल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन. इन व्हाट वे वाज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? वेंडा वाज वेरी क्वाइट गर्ल. शी यूज्ड टू वियर ओनली वन ड्रेस डेली. ओके, एंड शी वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन भी वो थी ही. हाँ, शी वॉज डिफरेंट. शी लिव्ड इन बॉजन साइड्स. Did Vanda have 100 dresses? Why do you think she said?
हो सकता है जब वो उससे पूछते थे तो उसको गुस्सा आता था और वो गुस्से में कह देती थी कि हाँ मेरे पास भी 100 ड्रेसेस हैं. Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Wenda? Is she also like Wenda or she is different? क्या था, मैडी क्यों एम्बेरस्ड हो रही थी पैगी से जब वो पैगी उससे ऐसा ट्रीटमेंट करती थी? बिकॉज वो खुद को उसकी जगह पर रख कर देख रही थी. हाँ, वेंडा की तरह नहीं थी, बट शी वॉज डिफरेंट. येस, यहाँ पर बेटा मैं आपको एक 2 वर्ड समझाना चाहती हूँ. एक वर्ड होता है एम्पैथी. ओके, एम्पैथी, EMPATHY, और एक वर्ड होता है सिंपैथी. आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इसको हम बोलते हैं सिंपैथी. ओके, क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में? एम्पैथी का मतलब है जब हम खुद को किसी इंसान की जगह पर रखकर सोचते हैं और फिर हम खुद कितना बुरा फील करते हैं. जैसे यहाँ पर ये मैडी कर रही थी. मैडी अपने आप को वेंडा की जगह रखकर सोच रही थी कि अगर मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, ओहो, तो मैं तो ये जवाब दूंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास. मतलब वो कितना एम्बेरस हो रही थी, कितना डिप्रेस्ड हो रही थी, कितना उसको बुरा लग रहा था. इट मीन्स उसको समझ में आ रहा था कि वेंडा क्या सोचती होगी, बट उसकी कंडीशन को समझने के लिए वो खुद को उसकी कंडीशन में लेके जा रही थी. तो इसको हम कहते हैं एम्पैथी, जब हम अपने आप को खुद उस सिचुएशन में रख कर सोचते हैं और तब जब जो हमारी फीलिंग्स आती हैं उसको हम कहते हैं एम्पैथी. और सिंपैथी का क्या मीनिंग है? सिंपैथी तो सिंपल है कि दया करना. जैसे मान लो वेंडा को देखा, अच्छा इसकी ड्रेस बहुत पुरानी है, चलो मेरी कोई अच्छी सी ड्रेस होगी तो चलो मैं तुम्हें दे देती हूँ, ये भाई पहन लो. कोई इंसान आपके घर पे आया और बोल रहा है जी 3 दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज़ हमें खाना खिला दो, तो आपके मन में उसके लिए दया आ गई, आपने जो भी घर में अच्छा खाना था उसको खूब सारा पेट भर के खिला दिया. ये हो गया सिंपैथी. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स, एम्पैथी एंड सिंपैथी. सो नाउ दिस मैडी वॉज फीलिंग एम्पैथी फॉर हर सेल्फ. अपने लिए वो एम्पैथेटिक हो रही थी. यस. See now next paragraph. Today even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wenda. आज वो लेट ज़रूर हो गई थी, वेडनेसडे की बात हो रही है, बट उसको एक खुशी थी कि कम से कम आज वेंडा का मजाक नहीं बना. She worked her arithmetic problems absent mindedly. उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी. देखो यहाँ पर भी एम्पैथी चल रही थी. 8 times 8 she wished she had the nerve to write Peggy a note. कहती काश मैं पैगी को लिख कर बता दूँ कि तुम ऐसा मत करो. बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. अक्सर उसको इसी बात पे चिढ़ाते थे, कितनी ड्रेसेस है, वो कहती थी 100, फिर उसका मजाक बनाती थी. कहती मैं चाहती हूँ कि तुम उसका मजाक मत बनाओ, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत नहीं थी. उसने सोचा उसको लिख कर कह दूँ कि ऐसा मत करो. When she finished her arithmetic, she start note to Peggy. उसने लिखना शुरू किया. Suddenly she paused and shuddered. Suddenly she paused and shuddered. मतलब अचानक वो रुक गई. क्यों रुक गई? उसके मन में वो एम्पैथी आ गई. She pictured herself. देखो बेटा यहाँ पर एम्पैथी है. She pictured herself in the schoolyard a new target for Peggy. कहते ऐसा ना हो कि पैगी नाराज़ हो जाए और वो मुझे ही अपना टारगेट बना ले. पैगी फिर उससे क्या पूछेगी? वो उससे ये नहीं पूछेगी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, वो उसके पूछेगी शी हैड ऑन, और वो पूछेगी वेयर शी गॉट द ड्रेस शी हैड ऑन, कि ये ड्रेस कहाँ से मिली. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज. डिस्गाइज होता है छुपाना, डिस्गाइज होता है छुपाना. डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग सो ऑन सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकोगनाइज इट. वो पैगी की पुरानी ड्रेसेस ले लिया करती थी और उसकी मदर उन ड्रेसेस में कुछ ना कुछ, कोई कढ़ाई करना, कोई ट्रिमिंग लगा देना, जिससे कि बच्चे ना पहचान पाए कि ये पैगी की ड्रेस है. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा. सोच रही थी, उसने क्या किया, उसको लिखा नहीं, बस यही प्रेयर कर रही थी कि काश पैगी खुद ब खुद ये सारी चीज़ें बंद कर दे. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द. अब उसने धीरे से अपने हाथ अपने बालों में ऐसे घुमाए और ये बोलने की कोशिश की कि काश वो ये सारी चीज़ें खुद से बंद कर दे. वॉट डिफरेंस डिड इट मेक? स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. वो पेपर फाड़ दिया उसने. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके साथ अपने रिलेशन ख़राब करना नहीं चाहती थी. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट. कहती पैगी वैसे गलत नहीं करती कभी भी. एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप
ऑन बर्जन साइड। और कहते हैं जहाँ तक वेंडा की बात है, वो तो एक सिंपल गर्ल है जो वहाँ रहती है, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। बस तभी उसकी आवाज़ सुनने को मिलती थी, व्हेन दे आस्क्ड हर अबाउट हर 100 ड्रेसेस। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। अब उसको याद आया दैट वन डे वेंडा टोल्ड हर अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, और वो थी पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग। एज शी रिमेंबर्ड अनदर, और दूसरी थी वो जंगल ग्रीन कलर की थी विद रेड सैशे, एक सैश था उसके ऊपर। यू वुड लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमायरेशन। वो ग्रीन कलर की ड्रेस को डिस्क्राइब कर रही थी, तो गर्ल्स ने कहा अच्छा अगर तुम पहनोगी ना तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री लगोगी, वेंडा को कहती थी। Now, thinking about Vanda and 100 dresses all lined up in closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. एक कलरिंग और ड्राइंग कंटेस्ट हुआ था उनके स्कूल में। नाउ दे उसने सोचने शुरू कर दिया कौन जीतेगा ये कंटेस्ट। फॉर गर्ल्स दिस कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। इस बार उनको टॉपिक मिला था ड्रेसेस डिज़ाइन करने का, और बॉयज़ को था कि मोटर बोट डिज़ाइन करेंगे। तो प्रॉबेबली पैगी जो है वो गर्ल्स मेडल जीतेगी। वाई? Because Peggy drew better than everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. तो वो बड़ी अच्छी ड्राइंग करती थी। Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. कहते कल तो टीचर अनाउंस कर ही देंगी। द नेक्स्ट डे, अगला दिन था थर्सडे। इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी हो रही थी, लाइट रेन थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रॉन्स्की, क्योंकि बारिश थी। ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉजन्स हाइट्स. And anyway, they were not taking chances on being late today because today was important. And why today was important? Because the result of the contest was going to be announced by Miss Mason. Yes, see girls. Now see students, next para. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. Now see, Maddie was saying, Peggy, yes, you are going to win. Hope so, said Peggy eagerly. अब कहती हाँ hope so. Now, the minute they entered the classroom, they stopped, short and gasped. There were drawings all over the room on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them, all lined up. This must be drawings for the contest. अचानक जैसे ही वो रूम के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा हर जगह ड्राइंग्स है, सुंदर सुंदर ड्राइंग्स है और कितनी सारी ड्राइंग्स है। फिर सोचा ये वही ड्राइंग्स है जो कंटेस्ट में आई थी। They were. Everybody stopped and whistled and murmured admiringly. Admiringly means वो प्रेज कर रहे थे। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. अब Miss Mason ने winners announce किए। Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in the room 12, along with the sketches of other boys. उसने कहा रूम नंबर 12 में boys के sketches रखे हुए हैं। And as for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, कहती ज़्यादातर girls ने 1 or 2 sketches submit किए थे, but one girl, yes students, but one girl, and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs. कहती कि इस girl के लिए इस room को प्राउड होना चाहिए, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। कहते इतने डिज़ाइंस थे, 100 डिज़ाइन, सारे अलग, सारे ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। यस, कह रहे थे कोई भी जो डिज़ाइन था वो प्राइज़ के लायक था। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और ये सारी डिज़ाइंस किसकी थी? सारी डिज़ाइंस थी वेंडा की। सी, वेंडा इज़ ड्राइंग हर sketches here. Yes students, now let us move and see so many dresses here. See, Vanda has drawn so many dresses, different colors, different designs. Now see, unfortunately Vanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Now let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. Now exquisite means extremely beautiful and well made.
टीचर ने कहा आप घूमकर ये ड्राइंग्स देख सकती हैं. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. Look, Peg, whispered Maddie. There is that blue old one she told us about. Isn't it beautiful? अब मैडी ने कहा, लुक पैगी, ये ब्लू कलर की ड्रेस एक दिन उसने डिस्क्राइब की थी ना, क्या ये सच में ब्यूटीफुल नहीं है? यस सेड पैगी. एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन. कहती और देखो ये वो ग्रीन वन है. ओ बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. कहती काश मैं भी ऐसी ड्रॉ कर पाती. Now see, ये this is now here the chapter is over. Next part है इसका एक और इसके जो working with language है और working with question है बेटा, उसकी मैं एक अलग से वीडियो इसमें डालूंगी. Let us discuss this oral comprehension question. Why did not Maddie ask Peggy to stop teasing Vanda? What was she afraid of? क्यों नहीं उसने पूछा? क्योंकि Maddie was afraid of that maybe Peggy's next target would be Maddie. ठीक है? She thought that Peggy might make her next target. Who did Maddie think would win the drawing contest? Peggy, of course Peggy. And why? Because Peggy's drawing was better than other. Then who won the drawing contest and what had the winner drawn? Yes, Vanda has won the drawing contest and she had drawn the 100 beautiful and bright dresses with every different design. So students, I think now this chapter is clear to you, and if you have any query you can ask me through my this YouTube channel, or you can contact me through my WhatsApp groups. Okay students, thank you.